So today we will be doing insertion of geometric mean and harmonic mean and then AGP. Let's wait for some more time and then we will start. Chalo, let's start. So insertion of arithmetic mean has been done and I'm starting with insertion of geometric mean. Chalo, let's start with insertion of geometric mean. So as you have already done the insertion of arithmetic mean, the concept is same. The difference is this will be in GP. Suppose we have a two number A and B. We have a two number A and B. And we need to insert n geometric mean between them. N geometric mean between them. And suppose those m geometric means are G1, G2, G3 till Gn. Then the concept is that A, G1, G2, G3 till Gn and B are in GP. Just like AP, अगर arithmetic mean होते तो A1, A2, A3 till AN would be in AP. So the sequence is in GP right now. As you can see that this is the first term of the sequence. This is the second term of the sequence. Third term of the sequence. This would be n plus 1th term of the sequence and this would be n plus 2th term of the sequence.
क्वेश्चंस देखेंगे हम, बाद में करेंगे, या फिर लेट्स सी क्या करेंगे। अभी के लिए तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो Tn+2 of the sequence is B, and according to the GP formula it is A into R. If R is the common ratio, R raised to the power n+2 minus 1. So therefore B is equal to A R raised to the power n+1. R is equal to B by A raised to the power 1 by n+1. So this is the common ratio of this GP, where G1, G2, G3 till Gn are the n geometric mean inserted between the. So if you want to find out any of the geometric mean, you can apply the same concept. If you want to find out, suppose, third geometric mean, which is G3, suppose, then it would be the fourth term of the sequence, right? This would be the fourth term of the sequence. So this is simply A into R raised to the power 4 minus 1. So T4, which is also equal to G3 B by A raised to the power 3 divided by n+1. वो जो जीपी की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज तो इस सीक्वेंस में वैलिड रहने ही वाली है। हाँ पार्थ बोल। सर वो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कैसे हो गया? थर्ड टर्म ऑफ जीपी फोर T4 कैसे हो गया? बताता हूँ बेटा, देखो, ये जैसे एपी का कॉन्सेप्ट था, अरिथमेटिक मीन में भी आप ऐसे ही कर रहे थे कि इफ वी आर इंसर्टिंग दिस एन geometric mean between A and B, then we will get a new sequence which is A, G1, G2, G3, Gn till B. This will be in GP. The concept is this. अब A is the first term, so G1 would be the second term, G2 would be the third term, G3 would be the fourth term, and if this is fourth term, the n Gn would be n plus 1th term and B would be n plus 2th term. सेम जो कि हमने एपी में किया होगा। एपी में भी इफ यू आर इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन, देन द सीक्वेंस विल बी इन एपी एंड A1, A2 will be the second term, third term and so on. ठीक है। So G3 is the third term of this sequence where the first term is A, second term is G1, third term is G2 and fourth term is G3. So that's why we need to find out the third geometric mean, which is G3. Then G3 is equal to T4, which is equal to A into R raised to the power 4 minus 1, which is 3. ठीक है। Suppose we need to find out rth arithmetic mean, या rth की जगह mth arithmetic mean, mth geometric mean. Then mth geometric mean of the sequence would be Gm, and Gm will be the T of m plus 1th term. And this is equal to A into R raised to the power. We are not inserting one AP in between this term. We are inserting n geometric mean between number A and B. You can insert one geometric mean or two geometric mean or three geometric mean, whatever number you want. इट इज सेम एज आई थिंक आप लोगों ने किया हुआ है जीएम, तो मैं उसमें डिटेल में गया नहीं। एक क्वेश्चन हम एपी का भी कर लेंगे इसके बाद, सो दैट एक बार टच में आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस जीएम is A raised to the power Rm and A into B by A raised to the power M divided by n plus 1.
ज्योमेट्रिक मीन में आऊंगा। देखो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये इसको छोड़ो, मैं नया पेज खोलता हूं। जस्ट अ सेकेंड। सपोज इफ यू वांट टू इंसर्ट a and b are the two numbers, and if you want to insert an arithmetic mean, then you can say that a1, a2, a3, an, and b. This will be a new sequence, and that sequence would be in AP. If you want to insert one arithmetic mean, that is fine. If you want to insert 10 arithmetic mean, that is also fine. जैसे आपको ये तो पता है कि if you want to insert a b का जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज a प्लस b बाई 2 होता है, राइट? जिसको अगर कैपिटल A नाम देंगे तो वी कैन से दैट वी आर इंसर्टिंग वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर। Between a and b, and if we are inserting one arithmetic mean between a and b, then a capital A small b, that is in AP. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए। जो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट था उसमें एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए थे। लॉजिक सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक है तो एक सीक्वेंस में आएगा, अगर यहाँ पे दो होते तो दो सीक्वेंस में आते, एन है तो एन सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, अब इस केस में ए की वैल्यू जो आती है वो ए की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 आती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल के अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज a प्लस b बाई 2। But right now what we are studying is we are inserting n arithmetic mean या n geometric mean between these two numbers. So if we are inserting one arithmetic mean, fine. Similarly, if we are inserting one geometric mean, suppose we are inserting one geometric mean between a and b, and that geometric mean is suppose capital G, then a g b would be in gp. This is the concept, and in that case g is equal to root ab आता है। कॉन्सेप्ट कहां से आता है? तो ये अगर जीपी में सीक्वेंस बन रहा है तो वी नो दैट कि जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी आएगा, एंड दैट्स वाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आएगा, एंड दैट्स वाई जी इज इक्वल टू रूट ए बी आएगा। अब ये तो अगर एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है तो वी विल गेट द सीक्वेंस ऑफ थ्री नंबर्स। हियर वी विल गेट द सीक्वेंस ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सीक्वेंस ऑफ n प्लस 1 टर्म्स, n प्लस 2 टर्म्स। तो जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन में कॉन्सेप्ट किया था, सेम अरिथमेटिक मीन में भी हो जाएगा कि दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, सो दिस मस्ट बी द सेकेंड टर्म, this must be the third term, and this must be the, similarly this must be the n plus 1th term, and this must be the n plus 2th term। तो जो फॉर्मूला आपके जीपी के होते हैं, b इज इक्वल टू टी एन प्लस 2th टर्म है, तो टी एन प्लस 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आता है, a प्लस n प्लस 1 डी। सो देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस है इस सीक्वेंस का, दैट इज b माइनस a बाई टी, b minus a by n plus 1. This is the common difference of this sequence, and suppose if we need to find out the value of a1, so a1 is the second term of the sequence. The second term is given by a plus 2 minus 1d, and a की जगह a, this is 1, and d की जगह b minus a divided by n plus 1. This is how it works. And suppose in this case, if you want to find out the, suppose in this case you want to find out the mth arithmetic mean, then mth arithmetic mean would be the tm plus 1th term, राइट? जैसे कि a1 था तो सेकंड टर्म थी, a2 था तो थर्ड टर्म थी, तो am है तो m प्लस 1th टर्म है, दैट इज गिवन बाय a प्लस
m plus 1 minus 1 into d, which is a plus m into d. d की जगह b minus a by n plus 1. ठीक है, तो दिस इज हाउ द ज्योमेट्रिक मीन वाज वर्किंग. अब एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो उसकी वैल्यू आपको पता है a+b/2 होती है. एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो a+b/2 हो गई. एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो रूट ऑफ ab हो गई. नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग हियर इज n अर्थमेटिक मीन, एंड जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज n ज्योमेट्रिक मीन. अभी क्लियर है सबको? So the concept is same. I'm inserting n geometric mean between A and B. So if I am inserting n geometric mean and the nomenclature of those geometric mean are G1, G2 till Gn, then I will get A, G1, G2, G3, Gn till B would be in GP. Total number of terms of sequence would be n plus 2 because I have inserted n geometric mean and two terms were already available, A and B. So T1, T2, T3 till T of n plus 2. T of n plus 2 is the way. हाँ, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू नोट इट डाउन. एक बार बस क्लेरिफाई कर लो. टी एन प्लस टू इज द बी, एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन. जीपी का फॉर्मूला एन प्लस टू टर्म का लगाया, आर की वैल्यू निकाल ली. नो इफ यू वांट टू फाइंड आउट थर्ड ज्योमेट्रिक मीन और यू वांट टू फाइंड आउट एम ज्योमेट्रिक मीन, वॉट एवर यू वांट टू फाइंड आउट यू कैन फाइंड आउट विद द टर्म का नंबर. नो यू कैन नोट इट डाउन. यस पार्थ. सर यहाँ पे आपने जीएम में लिखा था ए इंटू बी, बी बाई ए, एम की पावर एम रेस्ट एम डिवाइड बाय एन प्लस वन. तो सर वो हाँ, एन एक कांस्टेंट है ना, वो टर्म पे डिपेंड नहीं एन होगा? एन डिपेंड करेगा कितने ज्योमेट्रिक मीन तूने इंसर्ट किए हैं. इफ यू आर इंसर्टिंग 10 देन एन इज 10. अंडरस्टूड सर. मतलब बट वो जी एम पे डिपेंड नहीं करेगा ना, एम पे नहीं स्मॉल एम नहीं पे नहीं डिपेंड नहीं नहीं नहीं, करेगा? ओके जी समझ. मतलब हाँ, वो जी जो कैपिटल जी था तो वो तो एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे हम एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं. दैट इज द लॉजिक. So for mth geometric mean is this. Mth if you are inserting n geometric mean and you need to find out the mth geometric mean, then this is the formula you can use, or otherwise more than formula, this is the concept you can use. So you do not need to remember the formula. देखो प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी, प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी आपके पास, ध्यान देना, प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी, जैसे कि जीपी की प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेकंड एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, तो वो अप्लीकेबल यहाँ पे भी होंगी, है ना, क्योंकि अगर जीपी बना दिया है तो जीपी की सारी प्रॉपर्टी एज इट इज अप्लीकेबल होगी. हाँ, नहीं तो फॉर्मूला नहीं है, वो बस एक लॉजिक है बेटा, फॉर्मूला तो याद में. इट इट कैन बी इरेशनल एज वेल, डेफिनेटली इरेशनल हो सकता है अगर सीरीज इरेशनल है तो.
अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि सपोज आपको ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू बी, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इंटू थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन. तो दिस प्रॉपर्टी इज अप्लीकेबल हियर एज वेल. जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, जीपी के सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज हैं, वो पूरी इस सीक्वेंस में अप्लीकेबल हो जाएगी. बस फर्स्ट टर्म ए होगी एंड लास्ट टर्म बी होगी एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n+2 होगी. सिमिलरली एपी की जो थी, एपी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इस सीक्वेंस में अप्लाई हो जाएगी. लाइक फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एडिशन इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का एडिशन एंड सो ऑन. तो वो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे भी अप्लाई. जो भी ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो भी प्रॉपर्टीज है एज इट इज इसमें अप्लाई हो जाएगी. इनफैक्ट जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो कि हार्मोनिक मीन है, यू कैन रिलेट विद द सेम कॉन्सेप्ट कि इफ यू वांट टू इंसर्ट सपोज एन हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स a and b, if we want to insert n harmonic mean between two numbers, so the concept says that if those harmonic mean are h1 h2 till hn, then a h1 h2 h3 till hn and b finally, this would be in hp. So suppose if you need to find out value of any of the harmonic mean which you have inserted, then you can apply the concept of harmonic progression as it is. Like if this sequence is in hp, then 1 by a, 1 by h1, 1 by h2, 1 by h3, 1 by hn till 1 by b are in ap. And if these are in ap, then this is the first term of that ap, this is the second term of the ap, this is the third term of the ap. Similarly, this is n plus 2th term of the AP. And this is n plus 1th term of the AP. Same जो वहां पे लगा था. अब and similarly, this is the first term of the HP. This is the second term of that HP. Similarly, this is the last term which is n plus 2th term of that HP. And suppose if you need to find out any of the HP harmonic mean inserted between, so you can apply the concept as it is like 1 Tn plus 2 of that AP is 1 by B, which is given by first term plus n plus 2 minus 1 into D. This D of this D is of this AP. Iska common difference I am taking D. So therefore, you can say that 1 by B minus 1 by A is equal to n plus 1 D. So D in that case is 1 divided by n plus 1 into 1 by B minus 1 by A. And suppose you need to find out h3, suppose ये h3 निकालना है, तो I know that 1 by h3 is the fourth term of this sequence. इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी? फोर्थ टर्म होगी. तो 1 by h3 would be the fourth term of the sequence and fourth term is given by first term of AP plus 4 minus 1 into D. So therefore 1 by h3 is equal to 1 by A plus 3 into D, which is 1 divided by n plus 1 into 1 by B minus 1 by A. So you can find out the value of H3 as 1 divided by 1 by A plus 3 times of n plus 1 into 1 by B minus 1 by A. So this is the third harmonic mean between A and B. तो फॉर्मूले सारे एपी के लगाए हमने. ऐसे ही हम करते हैं जब हम एचपी को सॉल्व करते, राइट. एचपी का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज किया है जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट है कि इफ दिस इज इन एचपी दिस इज इन एपी. अब सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ये वाले सीक्वेंस के फॉर्मूले लगाए. n प्लस 2 टर्म भी लगाइए, इसी सीक्वेंस की लगाइए. 1 बाय h3 लिया है तो इसी सीक्वेंस की फोर्थ टर्म ली है.
So similarly, if you want to find out any of the harmonic mean between A and B, you can find it in this way. The concept is same in all the three cases: arithmetic mean, harmonic mean, or geometric mean. HP आप लोगों ने पढ़ा है ना पहले। HP में मल्टीप्लाई नहीं होता, LP HP में कुछ नहीं होता। HP का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि इफ द सीक्वेंस इज इन HP, देन द रेसिप्रोकल ऑफ इट इज इन AP। सिंगल अगर HM हमको निकालना है, मान लो वी आर इंसर्टिंग ओनली अ सिंगल HM इन इट, अगर सिंगल HM आपको निकालना है, मैं वापस इस स्क्रीन पे लेके आ जाऊंगा। सपोज इफ यू नीड टू फाइंड आउट ओनली अ सिंगल arithmetic mean, then you need to find out the harmonic mean of A and B. And suppose that harmonic mean is capital H, then you can say that A, H and B is in HP. So you can say 1 upon में A, 1 by H and 1 by B वाला जो sequence है, that is in AP. And if that is in AP, then I can say that 1 by H minus 1 by A is equal to 1 by B माइनस 1 बाय AP का कॉन्सेप्ट लगा है, या फिर जो हमने सीक्वेंस वाला पढ़ा वो भी लगा सकते हो आप। तो यहां से आपके पास आ, सॉरी, 1 बाय H, तो ये 2 बाय H इज इक्वल टू 1 बाय A प्लस 1 बाय B। यहां से आप H की वैल्यू निकाल लो। H इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय A प्लस 1 बाय B। द फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। दिस इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन दोस टू नंबर। या फिर इसी के बाद अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना चाहेंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे, तो 1 बाय A, 1 बाय H एंड 1 बाय B विल मेक एन AP। और इस AP में दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो जैसे हमने वो किया था एन टर्म के लिए, सेम आप एज इट इज यहाँ पे इसके लिए कर ही सकते हो कि 1 बाय A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। सो D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1 बाय B माइनस 1 by A into 1 by 2, and 1 by H would be the second term, and second term is given by 1 by A first term plus 2 minus 1 into D. So it is given by 1 by A plus 1 by 2B minus 1 by 2A. तो फाइनली ये भी वही आ जाएगा 1 by 2 1 by A plus 1 by B। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, 1 by H इक्वल टू ये आ गया, देखो ये फॉर्मूला सेम आ गया यहाँ पे। तो आपने ये भी एपी का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, यहाँ भी एपी का कॉन्सेप्ट लगाया। डेफिनेटली ये ऊपर वाला जो केस था इसमें nth थे तो डायरेक्टली हमने नहीं लगाया, हमने इसमें b को n+2 टर्म निकाल के कॉमन डिफरेंस निकाल लिया एपी का, एंड उसके बाद निकाल। कॉन्सेप्ट सेम जो कि एपी में है। कॉन्सेप्ट ऑफ एचपी में जो अप्लाई होती है, एचपी में बस एक ही कॉन्सेप्ट एपी का अप्लाई होता है, जो कि ये वाला होता है बेटा, कि एचपी का सीक्वेंस जो है उसका रेसिप्रोकल एपी का सीक्वेंस होता है। फॉर्मूले इसमें लगेंगे, सम के फॉर्मूले नहीं लगेंगे, बट जो दूसरे लॉजिक हैं वो एपी के लगेंगे, लॉजिक एपी के लगेंगे, फॉर्मूले नहीं बोल सकते क्योंकि सम का फॉर्मूला एचपी में नहीं होता। सो ओवरऑल यू कैन से कि हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अगर दो नंबर हैं और दोनों नंबर के बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है तो दैट इज 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। You can note it down this and you can
do this as well as by yourself. चलो, आई थिंक आई होप आप लोगों ने लिख लिया. The next is, suppose if you need to find out the product of n geometric mean between A and B, कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ n geometric mean? What is the product of n geometric mean between A and B? I need it in the terms of A, B and n. नहीं. Right, Bhavya. सर्वेश आपका गलत, चिन्मय wrong. So suppose if we are inserting n geometric mean, then A into G1 into G2 till Gn and B would be in Gp. ये concept है. And what we need to find out is, G1, G2, G3 into Gn is equal to what? तो simple है. This is A into R की power 1. This is G1. A into R की power 2 is G2. This is the first term, right? First term हो जाएगी A into R की power 1. This is the second term of the sequence. Second term of the sequence, A into R. This is A into R square. Similarly, this is A into R raised to the power n. So this is A raised to the power n into R raised to the power 1 plus 2 plus 3 till n.
तो a raised to the power n into r raised to the power n into n plus 1 by 2, sum of first n natural number. b by a, the whole raised to the power और यहाँ पे r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, b by a divided by the whole raised to the power 1 divided by n plus 1. So this is a raised to the power n, इसको इधर से अलग हटा देते हैं. This is a raised to the power n as it is into b by a raised to the power बचेगा n by 2, right? ये n plus 1 कैंसिल हो जाएंगे. a raised to the power n, b raised to the power n by 2, a raised to the power n by 2, finally a raised to the power n by 2, b raised to the power n by 2. Or you can write it like root ab raised to the power n, or you can write it geometric mean की power n. Yes. सर आपने जी की पावर एन कैसे लिखा वो नहीं समझा. ये रूट ए बी की पावर एन आया, ये पावर ये 2 था तो इसका स्क्वायर रूट बना लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की पावर एन. और रूट ए बी तो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना ए और बी का, तो दैट्स वाई जी की पावर एन. Similarly, if suppose you need to find out the sum of the n arithmetic mean between two numbers, sum of n arithmetic mean between two numbers a and b कितना आएगा? Sum of n arithmetic mean inserted between a and b, same वही logic है again, a, a1, a2 till an and b is in ap, and you need to find out the value of a1, n times of a plus b. Krish, wrong. So you can write it as a plus d, a plus 2d, a plus nd. Finally it will become n times of a plus d कॉमन लेने के बाद 1 plus 2 plus 3 till n. So this is n into a plus d times of n into n plus 1 by 2. So finally this is na plus d was b minus a by n plus 1. ये हमने निकाला था, राइट? n into n plus 1 by 2 and n plus 1 cancel. So you are left with n by 2 of a plus b. And you can write it like n times of the arithmetic mean between these two numbers.
So the summation of the n arithmetic mean inserted between the two number is the nth time of the single arithmetic mean inserted between the two number. You can note it down as a formula, you can say. वो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं आएगा मानस, मतलब that will not going to give you any property in, मतलब it will depend on the numbers then. नेक्स्ट ये तो दोनों प्रॉपर्टीज एज ए प्रॉपर्टी नोट कर सकते हो आप. एक क्वेश्चन करते हैं. If 9 arithmetic mean, या चलो पहले ये नोट डाउन कर लो, देन if 9 arithmetic mean and harmonic mean are inserted between the two numbers, are inserted between 2 and 3, are inserted between 2 and 3. Then find number of values of a plus 6h, where a and h is any of arithmetic means and corresponding harmonic mean. मतलब a and h क्या है? A and h is the corresponding arithmetic and geometric mean. So if you are taking the first arithmetic mean in place of a, then you need to take the first harmonic mean in place of h. If you are taking the second arithmetic mean in place of a, then you are taking second harmonic mean between 2 and 3. Similarly, if you are taking 9 arithmetic mean,
देन यू आर टेकिंग द नाइन्थ हार्मोनिक मीन। इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो डेफिनेटली ए और एच की 9 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। तो माय क्वेश्चन इज ए प्लस 6/h की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? यू इंसर्टेड 9 अरिथमेटिक मीन एंड 9 हार्मोनिक मीन, दोनों 9 हार्मोनिक मीन एंड 9 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। या यू टेक योर टाइम। देन हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a plus 6/h आर पॉसिबल? Definitely maximum possible values are 9 because 9 are arithmetic mean and 9 harmonic mean. Maximum possible values, it may be possible कि उससे भी कम आंसर। देखो, my question is, if you are not getting it, my question is, I am only right, Bhavya. My question is, actually what we have done is 2 and 3 के बीच में मैंने 9 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं एंड सिमिलरली मैंने 9 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं। एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, हाँ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बता रहा बेटा। a1 प्लस 1 अपॉन में h1 की कुछ वैल्यू आएगी, राइट? सिमिलरली a2 प्लस 1/h2 की एक वैल्यू आएगी। तो दिस आर द वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग am एंड gm hm। तो हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज आर पॉसिबल? और मे बी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, अगर इंटीजर टाइप में पूछ रहे हैं तो व्हाट विल बी द समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ऑल द पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ना क्वेश्चन को सही से फ्रेम करना है, इसको डिस्टिंक्ट कर दो। हाउ देन फाइंड डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज ai प्लस 1/hi। इसकी कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है वेयर आई कैन वेरी फ्रॉम 1 2 टिल n। तो हमको ये तो पता है कि ए आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो,
AI is equal to first term A plus ID, and this is A plus I into D is what? D is B minus A, 3 minus 2 divided by n plus 1. N plus 1 here is 10. So this is A plus I by 10. This is AI. Now what would be the HI? Now let's find out the value of HI. So for that I can first know that 2 H1, H2 till H9 and 3 are in HP. Then 1 by 2, 1 by H1, 1 by H2 till 1 by H9 and 1 by 3 are in AP. This is the concept. So you can say that अगर इसका डिफरेंस D1 ले लेता हूं मैं, the common difference of this AP is D1, then you can say that 1 by 3 is equal to 1 by 2 plus 11 minus 1 into D1. So therefore D1 is equal to 1 by 3 minus 1 by 2 into 1 by 10, which is minus of 1 divided by 10 into 6. ठीक है. Now if we need to find out the value of 1 by HI, then 1 by HI is 1 by 2 plus I plus 1 या ID मान लेता हूं मैं, I into D तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको HI की निकालनी है, 1 by HI की निकालनी है. Six by H would be 3 minus I by 10. ठीक है. If I add this to AI plus 6 by HI, so AI plus 6 by HI, in place of A I have 2, right? So 2 plus I by 10 plus 3 minus I by 10. So this is equal to 5. So only one possible, it is independent of I. That's why only one possible values, and that possible values is 5. तो आपको समझ में आया कि कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है बेसिक. एचपी की सीरीज को सीन में लाना है और फिर उसके हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है क्वेश्चन में वो लगाना है. क्लियर है, बढ़े आगे.
Yeah, this is the previous page. This is the previous page. बोल. तो सर हमें जो लास्ट में 5 आंसर मिला वो मतलब सिर्फ फिफ्थ टर्म दोनों का सम यूनिक नहीं दे रहा है, बाकी सब यूनिक दे रहे हैं, राइट? सो आंसर 8 हो हाँ जाएगा। मतलब a+6/h जो है वो a और h कौन से भी करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ले ले, द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी 5. सो सर मतलब आंसर 8 यूनिक वैल्यूज है। हाँ, ओनली वन यूनिक वैल्यू एंड दैट इज 5. ओके, मतलब सब एक ही वैल्यू दे रहे हैं। हाँ, सारे सब इंडिपेंडेंट ऑफ आई है तो इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक. हाँ. समझ गया सर, थैंक यू। You find the value of next is find the value of y cube plus z cube divided by xyz, where x is arithmetic mean and y and z are two geometric mean between two numbers. If y cube plus z cube divided by xyz की वैल्यू आपको निकालनी है, what is the value of this expression when x is an arithmetic mean and y and z are two geometric mean between two numbers. Right, Bhavya? Solution नहीं बता रहा मैं. I'm giving you 2-3 minutes to solve.
Yes, the answer is correct. Maximum क्या? Even all, I think only one or two answers are. See, so the concept is, if suppose the numbers are A and B, then A, X, B are in AP, and A, Y, Z, B are in GP. So Y is equal to AR, Z is equal to AR square, and this is equal to AR cube, अगर R कॉमन रेशियो मानूं तो y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी a क्यूब इंटू आर क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी a क्यूब इंटू आर की पावर 6 द होल डिवाइडेड बाय x की जगह मैं a प्लस बी बाई 2 लिख दूं, एंड y एंड z की जगह a इंटू आर स्क्वायर लिख दूं. a क्यूब और आर क्यूब कॉमन ले लूंगा, a क्यूब आर क्यूब कॉमन, आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस आर क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी बाई 2, a स्क्वायर इंटू आर क्यूब, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आर क्यूब और ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, एंड एज यू कैन सी दैट ए आर क्यूब इक्वल टू कितना है, बी है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. एलसीएम लोगे और ये 2 तो यहाँ जो बचा हुआ है वो है, तो ये ओवरऑल 2 इंटू ए प्लस बी बाय ए, तो ये सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाएगा. जेई में आया हुआ है, एडवांस में क्वेश्चन कभी तो पहले. तो और अदरवाइज जो स्टैंडर्ड मेथड थी वाई और जेड की वैल्यू निकाल के आर के टर्म्स में नहीं भी निकाल रहे हो, पुट करके निकाल सकते हो तो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम. या जो भी एपी जीपी के प्रॉपर्टी भी अगर लगा के आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा पा रहे हो या यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा पा रहे हो, किसी की भी वैल्यू निकालना है तो चल जाएगा. डू नॉट नीड टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड. ये सारी. सर मैंने इसको डायरेक्टली किया क्योंकि हमें पता है कि हम कांस्टेंट एपीज को जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैंने एक कोई भी 5,5,5 लिया और फिर 5,5,5,5, तो एक एपी है एक जीपी है, और फिर उससे वैल्यू आ सकती है. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. नहीं तो हम सारे टर्म्स को ए डाल देंगे, वाई भी है, जेड भी है, सबको एक्स सेम भी डाल है, दिया, वाई है. हाँ हाँ, चलेगा. तो उससे भी जनरलाइज टू आ जाएगा. जनरल क्वेश्चन है तो उससे भी आएगा. आर क्यूब, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ए आर क्यूब है ना, ये ए आर क्यूब इक्वल टू कितना है, बी है, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, तो आर क्यूब इज इक्वल टू बी बाय ए. सपोज अगर, क्योंकि कोई कोई डायरेक्टली भी मतलब छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, पर डायरेक्टली भी जैसे A1 एंड A2 आर द टू अर्थमेटिक मीन, G1 and G2 are the two geometric mean between the two numbers, then you need to find out the value of suppose G1 G2 divided by A1 plus A2. So what would be the value of this? You do not need to find out individual values. You can directly apply the concept of the sequence, corresponding sequence, and you can directly give the answer. अब आपको इस क्वेश्चन में पता है कि अगर A और B दो नंबर हैं और अगर A1 और A2 मैंने दो इंसर्ट किए हैं और G1 और G2 तो दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, तो आई कैन से दैट A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस, अच्छा सॉरी इसमें तो नहीं निकलेगा, इसमें डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसमें तो A और B के टर्म में ही निकलेगा, माय मिस्टेक. में और कुछ A एंड B के टर्म्स में ही निकलेगा, तो A1 प्लस A2 इज A प्लस B एंड G1 इंटू G2 इज A. करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की तो डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके A भी डिवाइडेड बाय A प्लस B आप निकाल सकते हो. तो डू नॉट नीड टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल वैल्यूज.
कैन डायरेक्टली फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, मतलब अगर जीपी का कोई या एपी के सीक्वेंस का कोई कॉन्सेप्ट लगा के आंसर आ रहा है, आने दो। चलो देयर आर चलो देयर आर few properties related with arithmetic mean and geometric mean and harmonic mean of two numbers. So let's go through those properties. So suppose we have two positive numbers, a and b. A and b. Then you know that the arithmetic mean of the two number, if you are inserting only one arithmetic, a plus b by 2 root ab, and harmonic mean of a plus b. ठीक है? So the first property is, जो आपने यूज करी होगी पहले भी, the arithmetic mean of two number is two positive number is always greater than equal to the geometric mean of the two positive number is always greater than equal to harmonic mean of the two positive numbers. So whatever the a and b can be, this a plus b by 2 is always greater than root ab, which is always greater than 2ab divided by a plus b. सो जो हम प्रॉपर्टीज रेंज वगैरह को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं वो यही प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर्स. ए और बी को लेके भी आप प्रूफ कर सकते हो, वेरिएबल को भी लेके भी मैथमेटिकली क्लियर कर सकते हो, और अदरवाइज दो नंबर को लेके आप यू कैन ऑलवेज जज इट. अब इसमें क्या होता है कि एक तो पार्ट ये है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच व्हेन ए एंड बी आर डिफरेंट, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी. But when a is equal to b, this equality hold. So you can say that this hold when yes, hold when a sorry when a is equal to b. तो आपने ये कॉन्सेप्ट भी यूज किया होगा कि x प्लस वन बाई एक्स टू कब आता है, जब x वन होता है. तो when a is equal to b. So this is the first property. You can assume two numbers, you can find it out, और मैथमेटिकली भी you can prove it कि मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता है कि शायद a माइनस, जैसे if you want to prove it mathematically, if you want to prove it, you can say that कि a माइनस जी की वैल्यू निकालोगे, a प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी की वैल्यू निकालोगे, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ए रूट बी, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रूट ए माइनस रूट बी. ऑलवेज पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो व्हेन a इज इक्वल टू b. तो ऐसे मैथमेटिकली आप प्रूफ तो कर ही सकते हो उसको. One more important property is this AGH
are themselves in GP. It means G square is equal to AH होने वाला है. You can directly put this values A, H और G की वैल्यू पुट करोगे, you will get G square equal to H आने वाला है. So the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two numbers are themselves in GP. It is always true. Third one is, if A is the arithmetic mean and G is the geometric mean of the two numbers, या इसके पहले ये वाली कर लेते हैं हम. If A and B are roots of a equation, then the equation in terms of A and G will be if A and B are the roots of the equation, then the equation in terms of A and G would be. तो equation ideally क्या होनी चाहिए? X square minus of A plus B into X plus AB is equal to 0. Sum of roots and product of roots. So this is X square minus twice of AX plus G square is equal to 0. Right? A plus B को twice है and AB को G square. A and G are arithmetic mean and geometric mean. तो A अगर arithmetic mean है and G is the geometric mean, then the numbers are can you let me know the numbers के वो numbers क्या आएंगे? वो दो numbers. ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा. मेन प्रॉपर्टीज तो ये शुरू वाली दो ही हैं. दिस वन सबसे ज्यादा यूज होने वाली तो यही है. ये तो बस आप एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो, कि एज ए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ये तो if a capital A is the arithmetic mean and capital G is geometric mean, then the numbers would definitely be root of this equation, right? So that is twice of A plus minus under root of 4A square minus 4G square divided by 2. And after solving, you will get A plus minus under root of A square minus G square. A plus and minus under root of A square minus. If A is the arithmetic mean, G is the geometric mean, then the numbers are. तो देखो A and B रूट थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी थी, और अगर A और G की वैल्यू पता है तो इसके रूट क्या होंगे? A और B होंगे. तो बस वो वाइस वर्सा कर दिया थर्ड प्रॉपर्टी का, कि इफ दिस इज द रूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b. तो स्मॉल a और स्मॉल b की ये वैल्यू है, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट ही होंगे ना वो.
तो जस्ट उसको कनेक्ट कर लिया थर्ड प्रॉपर्टी को निकालने के लिए। If A arithmetic mean, G is the geometric mean, and H is the harmonic mean of three numbers, then the equation whose roots are A, G, and H. Sorry. Equation whose roots are A, B, C in terms of capital A, capital G, and capital H, where A, G, H are the arithmetic mean, harmonic mean, and geometric mean of the numbers A, B, C. You need to find out the equation whose roots are A, B, C. Similarly, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, या ए बी पॉजिटिव ही लेके चलना है बेटा, पॉजिटिव ही है, टू पॉजिटिव नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन में दिक्कत है ना। अच्छा, इसके पहले एक और चीज है, इसके पहले आप ये और सीख लो, बेसिक चीज है। इफ देर आर सपोज n नंबर्स a1 beta, then the arithmetic mean of this is the average, which is a1 plus a plus a3। इस प्रॉपर्टी के पहले ये आपको चाहिए an divided by n, this is the arithmetic mean. Geometric mean is the nth root of a1 a2 a3 till an, and harmonic mean of n divided by 1 by a1 plus 1 by a2 till 1 by an। सेम कॉन्सेप्ट है जो दो नंबर के लिए हमने चलाया था, वही हमने यहाँ क्या किया है, n नंबर्स के लिए चला लिया है। जैसे कि अगर दो नंबर्स के लिए हम दो नंबर a और b लेते थे, तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास a प्लस बी बाई टू आता था, यहाँ पे सबका एडिशन करके डिवाइडेड बाय n आ गया। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आता था, तो nth रूट आ गया। एंड हार्मोनिक मीन आता था आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी आता था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बढ़ा दिया। अब आप ये वाली प्रॉपर्टी कर पाओगे। बेटा पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा ये, मतलब मेरा प्रिंट पे काम होता है। राइट भव्या, यू कैन लीव द मीटिंग, जिसका आंसर आता जाए यू कैन लीव द मीटिंग। तो सिंपल है, अगर तीन नंबर हैं तो a प्लस सी, या फिर जो स्टैंडर्ड है हमारे पास वही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 3 आएगा,
g इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी आएगा एंड n बाय h इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c आएगा, है ना? यही फंडा है, सेम है, सिर्फ h को नीचे ले गया तो इसको ऊपर लेके आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3a, ए बी सी इज इक्वल टू जी क्यूब, एंड यहाँ पे सॉल्व करोगे दिस इज 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 बाई एच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी सी। So therefore AB plus BC plus CA is equal to 3 times of G cube divided by H आएगा। ABC को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ABC G cube आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, so that's why your equation here is x cube into sum of roots which is a plus b plus c which is minus of 3a into x plus ab plus bc plus ca which is 3g cube divided by h into, sorry, x square, here it is x, and then minus abc is g cube. This is the equation. You can leave the meeting if this is done. यार ये नोट्स में नहीं भेज पाऊंगा, आई विल गिव यू चांस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना? I will send the recording, guys. That is for sure. मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा कंटेंट आपका एक ही बार में आ जाए। यस रोहन, फ्लो में नहीं है, जिसका भी है, मैं क्योंकि मैंने उनको सबको साथ में मिक्स करके कराया था, तो इफ़ यू हैव मिस्ड द लेक्चर आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देखना तो पड़ेगा। ये अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट जो बताया था, ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट, ये दो प्रॉपर्टीज। ये किसी ने मेरे से पूछा था ये वाला क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे, a प्लस एक्स बाई एच वाला। ओके देन आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग टू यू इन द ग्रुप, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।